Hello everyone, very good afternoon. I hope everyone is doing good. And now in today's session, we have 11 people joined. So we'll start with the today's topic, learning and memory. So I hope the students who have joined the earlier session as well, they have gone through with the earlier sessions and read the concept about the previous topics which we have studied. Otherwise, what I'll do today before starting a new session with the new topics, I will go ahead and do a small recap for the previous sessions. So, if I start from the beginning, पूछ भी लूंगा मैं किसी से कुछ कुछ अगर बीच में अगर पूछना हुआ मुझे तो. So, first of all, we are studying about the introduction of psychology, and we have started with the basic things, the definition of psychology and the meaning and the earlier definitions of psychology कि पहले क्या definitions थी and then later definitions कैसे change हुई and the development of psychology in India as well. Later we came to know about the perception. What is perception, the laws of perception, the process of perception, and the factors affecting perception. Later, we came to know how we do a perception regarding the depth and the distance of an object, and also the size of an object with our perception. So, after that, we have studied about the thinking and language. Thinking is a process where we learn about how we visualize the worlds with our sensation. So thinking हमने पढ़ा था, उसके बाद process thinking का क्या था, then problem solving skills, how we deal with the problem and how we will solve our problems with some kind of factors and some specific categorization. After that, we have studied about the decision making, how we make decisions in order to resolve the problems in our daily life. And after that, we have studied about the factors which affects the decision making, like the heuristics. If you remember, I have shown you the video of the heuristics and the bias, जिसमें हम क्या करते थे. Heuristics basically means we follow the mental shortcuts in order to take decisions in our daily life, जहाँ पे हम shortcut तरीके से decision लेते हैं और कभी-कभी वो ठीक हो जाता है, लेकिन most of the times it goes error in the decision making process. So this is what we have studied earlier. तो अगर किसी को कोई डाउट हो पुराने कॉन्सेप्ट से, पुराने यूनिट से, पुराने जो सिलेबस हमने कवर किया है, so they can ask in the beginning. I will answer them first because वो अगर अच्छे से समझ में आएगा, then we can easily understand the remaining topics for the same course. So if anybody have any doubts or questions, they can ask. I will answer one by one. Otherwise, I will move and will start with the new unit. I am not audible. किसी ने मैसेज सेंड किया है You कि are आई एम नॉट audible. ऑडिबल. Yes, audible. Okay, so I have got a message from Hirva Vora and he says you are not audible. So, dude, you can check your system and you can check your mic and your speaker because everyone else is like audible and I'm audible to all. So you can check from your end. There might be some technical issues. तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, तो it's okay. It's good for me. I will start from the with the new unit, which is learning. सो लर्निंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम नई चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं. लर्निंग में यही होता है कि हम कैसे सीखते हैं, लर्न कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं और उसमें एरर्स क्या आते हैं, कैसे हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीखते हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं इसके पीछे, जो अर्लियर जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने जो डिफाइन किया है थ्योरीज को. तो हम लर्निंग के बारे में स्टार्ट करेंगे यहाँ से. So first of all, I will come to the content. So we will start with the nature and the scope of learning and the objectives of this unit, and later we will learn the types of learning. And we have
four types of learning here: the motor learning, verbal learning, concept learning, and the discrimination learning. So we have basically four types over here. After that, we will learn about the theories of learning. First, we will have classical conditioning, operant conditioning, observational learning, and cognitive learning. So basically, we have four theories over here, which again really important for the exam point of view. So you can mark this topic as a important, because इस यूनिट में से यहीं से ही एग्जाम में आ सकता है. And later we will learn about the strategies in learning, imaginary, rehearsal and organization. Strategies क्या होती है learning की? तो इनमें basic क्या है? First we will learn about the nature, and then we will learn about the types. Learning किस किस types की होती है? Motor learning, verbal, concept and discrimination, ये हो जाते हैं हमारे types. उसके बाद हमारा आता है कि theories क्या होती हैं. Types तो हो गई, सारी types जो भी हैं, सभी types में अब थ्योरीज क्या क्या होती है लर्न करने के लिए, कौन कौन सी थ्योरीज हम फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज क्लासिकल थ्योरी, अदर वन इज ऑपरेंट थ्योरी, थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल, एंड फोर्थ वन इज कॉग्निटिव थ्योरी. सो आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट द लर्निंग की स्ट्रेटजीज क्या होती है, कैसे कैसे हम लर्न करते हैं. फर्स्ट इज इमेजिनरी, सेकंड वन इज रिहर्सल, एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन. सो ये बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजीज होती हैं लर्न करने के लिए. तो सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये चीज याद रखना कि टाइप्स अगर कोई पूछे तो वी हैव बेसिकली फोर टाइप्स. एंड इफ समवन आस्क यू about the theories of learning, so we will have four theories over here. First one is classical, second is operant, third observational, fourth is cognitive. So ये हो जाती है theories. अगर strategies पूछे तो we have three strategies: imaginary, rehearsal and organization. सो ये चीज याद रखना, अगर एग्जाम में किसी ने थ्योरीज पूछी है तो स्ट्रेटजीज मत लिख देना, अगर स्ट्रेटजीज पूछी है तो थ्योरी मत लिख देना. तो ये चीज याद रखना कि हमारे टाइप्स ये हैं, थ्योरीज ये चार हैं और हमारी स्ट्रेटजीज ये तीन है. देन आफ्टर दैट वी हैव वन मोर टॉपिक ओवर हियर व्हिच सेज अबाउट द लर्निंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड, जो हम अभी यूज कर रहे हैं. जैसे हम अभी, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ तो कहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूज, आफ्टर यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स बीन पॉसिबल कि मैं आपको यहाँ से पढ़ा पा रहा हूँ. दैट कम्स अंडर डिजिटल वर्ल्ड, कि हम डिजिटल वर्ल्ड से अभी यूज करके हम पढ़ाई कर रहे हैं. सो बेसिकली वी हैव दिस टॉपिक्स इन दिस कमिंग यूनिट लर्निंग. So first of all, I will start with the introduction, the basic introduction about learning. So we have an example over here. They have used one example in order to derive the derivation, or you can say the definition of learning. So here it says कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है इधर. उन्होंने बताया है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, व्हेन दे यूज्ड टू गेट इंजेक्शन इन देयर अर्लियर लाइफ, तो वो क्या करते हैं, जब छोटे बच्चे इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं, तो जब कोई बच्चा इंजेक्शन लगवा रहा होता है तो उसने इंजेक्शन लगवाया, और उस जैसे उसने इंजेक्शन लगवाया उसको पेन हुआ और वो क्या करना, रोने लग गया वहां पे. तो उससे क्या हुआ, जो सारे बच्चे थे वहां पे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने इंजेक्शन लगवाया भी नहीं अभी, दे आर जस्ट स्टैंडिंग इन ए क्यू. बट स्टिल आफ्टर वाचिंग द क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन फ्रॉम द अदर चाइल्ड जिसने इंजेक्शन लगवाया था, उसको देख के ही वो रोने लग जाते हैं, जबकि उन्होंने लगवाया ही नहीं है इंजेक्शन, अभी तो उन्हें पेन भी नहीं हुआ है. जिसने इंजेक्शन लगवाया है वो रो रहा है, उसको देख के बाकी सब बच्चे रोने लग जाते हैं. तो यही होता है लर्निंग, कि हम लर्न कर रहे हैं कैसे, विद द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स. दूसरों को देख के हम लर्न कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगाने से हमें पेन होता है. ये मैंने लर्न किया. जो दूसरे बच्चे थे जो रो रहे थे, जिन्होंने इंजेक्शन लगवाया भी नहीं है, उन्होंने बिना लगाए ही ये सीख लिया, लर्न कर लिया कि इंजेक्शन लगाने से हमें पेन होगा, क्योंकि वो लड़का भी रो रहा है तो हमें भी पेन होगा. तो इसलिए वो क्या, सब रोने लग जाते हैं. सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड लर्निंग. And if I'll explain the definition of this, so we have the phenomenon of acquiring a behavioral pattern such as crying after seeing an injection. ये example दिया है. Due to some previous experience have been termed by psychologists as learning. तो ये कह रहा है जो फिनोमिना होता है, हमें नए बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में जो बदलाव आता है, किसकी वजह से, पुराने एक्सपीरियंस की वजह से, उसे ही हम बोलते हैं लर्निंग. तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग. यू कैन हाईलाइट दिस.
Then after that, it says in the first section, we will examine different theories of learning, as I told you, and then the strategies we use in learning. We will also discuss how learning take place in the digital world. Digital world में कैसे learning होती है. Then we will move to the next section, memory, जो इसकी next unit है. So we have these are the objectives कि हमारे क्या क्या main एम होना चाहिए. ये यूनिट पढ़ने के बाद हमारा क्या क्या मेन एम होना चाहिए. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ लर्निंग. सो आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट वी मस्ट बी कैपेबल ऑफ giving answer of the following questions, like explain the nature of scope of learning, and second one is describe the different types of learning, discuss the theories of learning, and after that identify the process involved in learning, strategies, and discuss the effect of media on learning. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये सब हमें सीखना है इन यूनिट्स के अंदर. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग, कि नेचर क्या है लर्निंग का और उसके स्कोप क्या है. तो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, डेफिनेशन बताया लर्निंग का. सो लर्निंग बेसिकली अ फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग इन बिहेवियर because of the previous experiences, that is basically called learning. So that is the definition of learning. Your voice is not clear. Please zoom your screen little bit. Okay. So I will zoom out my screen. I think now it is like it is clearly visible for all, right? So, in Nature and Scope of Learning, it says the term learning has been defined by psychologists in many ways. वही क्योंकि different scientists have a different theories, different definition. So we have lots of definition, but the important definition which we use in the modern world. So according to the most acceptable definition, acceptable मतलब जिसको हमने सबसे ज़्यादा माना है, and that is a relatively permanent change in the behavior रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस. दिस इज व्हाट आई सेड, राइट. लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, रिलेटिवली permanent change in behavior resulting from experience, and this is given by Baron 2001. तो ये कह रहा है कि रिलेटिवली जो चेंज आता है बिहेवियर में, परमानेंट जो चेंज आता है रिलेटिवली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, उसी को हम लर्निंग कहते हैं. लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली परमानेंट चेंज क्या कह रहा है कि मतलब टेम्पररी चेंज को भी हम इसमें कंसिडर करते हैं. कि मतलब अगर आज मैंने कोई नई चीज सीखी, सपोज आई हैव अभी मैं अगर एग्जांपल दूं कि सपोज मुझे अभी बाइक चलाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बाइक चलानी नहीं आती. सो मैं क्या करूंगा, बाइक चलाना सीखूंगा. आई विल लर्न हाउ टू राइड अ बाइक. ठीक है, मैंने बाइक चलाना सीख ली, फिर मैंने बाइक चला रहा हूँ बहुत दिन से. अब मैं क्या, बाइक चलाना मुझे पसंद नहीं है. अब मुझे मन कर रहा है कि मैं अब गाड़ी चलाना सीखूं. मुझे बाइक बहुत बोरिंग लगती है, मुझे नहीं पसंद है उसमें क्या कहते हैं, सेफ नहीं हूं मैं, एक्सीडेंट इजीली हो जाता है या फिर बहुत सारे इश्यूज हैं. तो मेरे को लगा कि नहीं यार, अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, अब मैं कार चलाना सीखूंगा. सो इट कम्स अंडर अ टेम्पररी चेंज. क्या मेरे अंदर क्या हुआ, मेरे अंदर एक टेम्पररी चेंज हुआ कि पहले मुझे बाइक पसंद थी, अब मुझे कार पसंद है, अब मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ. सो this comes under relatively permanent change. तो अगर मैं आपको आगे रीड कर रहा हूँ. So first, as written in the definition, relatively permanent change, it means it is important to mention here that any temporary change in the behavior can be termed as learning. जो भी टेम्पररी चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, उसको भी हम लर्निंग कहते हैं. सच एज फीलिंग स्लिपी आफ्टर टेकिंग ड्रग्स, दवाई लेने के बाद मैं स्लिपी फील कर रहा हूँ. और हैवी मील्स और फीलिंग टायर्ड ड्यू टू इलनेस, इसमें गलत लिखा हुआ है, फीलिंग टायर्ड लिखा हुआ है, टायर्ड आएगा यहाँ पे, ड्यू टू इलनेस. एंड सेकंड, परमानेंट चेंज ड्यू टू द एजिंग और मैचुरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लर्निंग. ये कह रहा है कि जो हमारा परमानेंट चेंज अगर हमारे अंदर कोई आ जाता है, जैसे मैं बुढ़ा हो गया तो अब मैं क्या ऑयली चीज नहीं खा सकता, ऑयली चीज नहीं खा पाऊंगा, या कोई ऐसा कोई भी परमानेंट चेंज जो मेरी एज की वजह से मेरे अंदर आया है, या जो मेरी मैच्योरिटी की वजह से मेरे अंदर आया है, दैट इज नॉट कम्स अंडर लर्निंग प्रोसेस. सो इसके बाद ये कह रहा है थर्ड, here experience does not mean on your own experience. तो ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस जरूरी है नहीं कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस हो उसी से हम सीखे. वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस एज वेल. तो किसी और के एक्सपीरियंस से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. तो ये आता है हमारा लर्निंग के अंदर. Then we will come to the types of learning. So in types of learning we have basically four types, as I have already told you
in the contents of the unit. First one is motor learning, verbal learning, concept learning and discrimination learning. तो ये चार टाइप है, हम चार कौन कौन से टाइप्स की लर्निंग है जो हम सीखते हैं. फर्स्ट वन इज मोटर लर्निंग. अब मोटर लर्निंग को मैं एक्सप्लेन करूं, सो मोटर मीन्स इसमें एक मैकेनिकल वर्ड की तरह यूज किया है. मोटर लर्निंग मीन्स वो लर्निंग जहां पे मैं अपने बॉडी को मोशन में, बॉडी से कुछ काम करके, जब तक मैं बॉडी बॉडी से कुछ अगर कोई काम करूंगा, अपने हाथ का यूज करूंगा, पैर का यूज करूंगा, कुछ भी मुझे फिजिकल वर्क जहां पे मैं करूंगा, उसी को हम बोलेंगे मोटर लर्निंग. इफ आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल्स. So, motor learning involves acquiring of new motor skills or function as a result of practice of experience. This learning helps us in executing motor functions, for example, walking, running, skating, driving, climbing, etc. So, walking में, running में, skating में, driving में, climbing में, what we are doing exactly. So, we are using our body parts and we are in motion. So, this comes under motor skills. ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी मोटर लर्निंग. And in verbal learning, the second one is verbal learning. Verbal means the communication, how we communicate. It comes under verbal. So verbal learning में क्या, वो learning जो हम सीखते हैं communicate करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उनके आपस में communicate करने के लिए, connect करने के लिए जो हम learning हम सीखते हैं, that comes under verbal learning. So it explains under this, it involves acquiring skills to communicate with each other by using words, sounds and pictures etc. So we can communicate with each other. हम एक दूसरे के साथ communicate कर सकते हैं कैसे, words से, sound से, पिक्चर से, और जिन भी चीजों से हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को हम बोलते हैं लर्निंग. तो वो लर्निंग जिसमें मैं कम्युनिकेट करना सीखूंगा लोगों से, उसको हम बोलेंगे वर्बल लर्निंग. एंड द थर्ड वन इज दैट कॉन्सेप्ट लर्निंग. सो कॉन्सेप्ट लर्निंग बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट वर्ड पहले भी आ चुका है, पिछली यूनिट्स में भी आ चुका है. अगर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, सो दे कैन इजिली अंडरस्टैंड द टॉपिक अंडर कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है कि हमारे माइंड की वो कैपेबिलिटी या वो एबिलिटी जो ऑब्जेक्ट को, जो चीजों को कैटेगराइज कर देता है एक कैटेगरी के अंदर, अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर देते हैं कैटेगरी के अंदर. फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज आई एम क्रॉसिंग अ रोड. ठीक है, तो मुझे कहीं पीछे से कुत्ते या कोई डॉग है वो भौंक रहा है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसके भौंकने की आवाज से ही मुझे आवाज आ जाएगी, हाँ ये कुत्ते की आवाज है. तो मैंने क्या किया, अपने माइंड में उसको कैटेगराइज कर दिया कि ये जो आवाज आ रही है ना, तो ये एक डॉग की ही आवाज है. आई एम प्रिटी श्योर जो आवाज आ रही है वो डॉग की आवाज है. तो मैंने क्या किया, उस बार्किंग को, उस भौंकने को कैटेगराइज कर दिया डॉग के अंदर. लेकिन मुझे ये नहीं पता वो किसी की है, किसकी है, कौन से डॉग की है, कौन से ब्रीड की है, मुझे ये नहीं पता. बस मुझे इतना पता है, मैंने कैटेगराइज कर दिया कि जो आवाज आ रही है वो किसी भी एक डॉग की है, एंड द डॉग इज अ कैटेगरी, राइट. तो ये हो जाती है हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग. मैं इसको बता देता हूँ. दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन विच वी लर्न टू क्लासिफाई स्टिमुलाई based on its characteristics and features. For example, our ability to identify a barking four-legged a tail animal as a dog. ठीक है, कि मतलब कोई भौंक रहा है जिसके चार लेग हैं और क्या है, टेल है बहुत बड़ी, तो हमने क्या कैटेगरी में अंदर डाल दिया, डॉग की कैटेगरी में डाल दिया. सो दैट कम्स अंडर कॉन्सेप्ट लर्निंग. एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ठीक है, डिस्क्रिमिनेट मतलब करना, डिफरेंशिएट करना, लोग अलग अलग कर देना. सो आर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टिमुलाई एंड गिविंग रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, आर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट व्हीकल बेस्ड ऑन इट्स हॉर्न. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर देना. तो जैसे ही इसमें एग्जांपल दिया है उन्होंने कि हम हॉर्न से व्हीकल्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. सपोज मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे पीछे कोई गाड़ी हॉर्न बजा रही है, या कोई बाइक हॉर्न बजा रही है, या फिर कोई ट्रक हॉर्न बजा रहा है, या फिर कोई और व्हीकल हॉर्न बजा रहा है, तो ये मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ ना. हॉर्न सुन के ही मैं बता दूंगा कि हाँ यार ये गाड़ी का तो नहीं है, कम से कम ये किसी ना किसी ट्रक का होगा, या फिर ये किसी भी अगर हॉर्न बहुत ज्यादा लाउड है तो ये किसी ना किसी ट्रक का होगा या हैवी व्हीकल का होगा. इफ द हॉर्न इज नॉट दैट हाई, that means it is because of a car. ये किसी भी कार का हो सकता है या किसी और व्हीकल का हो सकता है. मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूँ. अल्टीमेटली कहने का मतलब है मैंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया हॉर्न सुन के ही. ठीक है, तो ये आ गया डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. इसके बाद आ जाता है
थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो मुझे यहाँ तक बता दो, अगर किसी को कुछ भी थोड़ा सा डाउट हो तो मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी नीड टू ओपन आवर माइंड्स लिटिल बिट मोर, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हमें कुछ अलग चीजें भी यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज इन द थ्योरीज ऑफ लर्निंग द साइंटिस्ट हैव like they have written the theories with an examples. So we have lots of examples over here where we have to understand the new topics as well. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अगर किसी को अभी तक कोई डाउट है तो they can ask, otherwise I will move to the next topic, which is theory of learning. No doubt. Great. Anyone else? I don't have any We are good. issues with it. Yes. So we have here the theories of learning. मतलब लर्निंग की थ्योरीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या थ्योरी साइंटिस्ट ने डिराइव की हैं। लर्निंग तो हमें पता ही है, ये तो बहुत ही मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जो हम डेली लाइफ में हम करते ही हैं। लेकिन क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए कि लर्निंग्स में क्या क्या थ्योरीज अप्लाई होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लर्निंग हमें सबको पता है कि लर्निंग कैसे होती है, कैसे हम चीजें सीखते हैं। बट नाउ as we are students of a psychology course, so we must know about the theories behind the learning process. So we have basically four theories. First one is learning by association, which is known as classical conditioning. And the second one is learning by consequences, and that is known as operant or instrumental conditioning. And the third one is learning by watching others, जो हम दूसरों को देख के सीखते हैं, that is known as observational learning. And the fourth one, but not the least, it is a learning by higher mental process, which is known as cognitive learning. So cognitive मैंने last classes में भी आपको बताया था, cognitive is a mental process, ठीक है, जहाँ पे हम दिमाग अब मतलब विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी अदर थिंग्स, हम अपने माइंड से ही हम जो लर्न करते हैं, अपने खुद के माइंड से ही लर्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। खुद के माइंड से, खुद के एक्सपीरियंस से, खुद से जो हम ऑब्जर्व करते हैं माइंड में, वो उसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग, जो हम माइंड प्रोसेस होता है ओनली। सो फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग this is the theory which is proposed by Ivan Pavlov, ठीक है, that is the name of the scientist. According to classical conditioning, classical conditioning जो ये है, अभी नया टर्म आया क्लासिकल कंडीशनिंग, तो तुम याद रखना क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि नए वर्ड्स आएंगे इसमें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के हम बारे में पढ़ रहे हैं, जो पहला थ्योरी है, जो बोलते हैं जिसको लर्निंग बाय एसोसिएशन ही भी बोलते हैं इसको। तो ये किसने दिया था? ये इवान पेवलोव ने ये थ्योरी दी थी, जिसमें we learn by making associations and relationships among various stimuli. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं एसोसिएट करके, मतलब चीजों को एसोसिएट करके कि अगर ये चीज है तो इस, अगर जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, सपोज आई एम क्रॉसिंग अ रोड, आई एम ऑन अ बाइक एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन अ फ्रंट ऑफ अ ट्रैफिक लाइट, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट है मेरे सामने और रेड लाइट है, लेकिन मैं उसे क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। क्यों क्रॉस नहीं कर रहा हूँ? सिर्फ रेड लाइट का कोई लॉजिक थोड़ी ना उसमें कि रेड लाइट है इसलिए क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। मैं क्रॉस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर रेड लाइट अगर मैं क्रॉस करूंगा तो जो ट्रैफिक पुलिस है दे विल, वो मुझे पकड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, मुझे पेनल्टी मुझे देनी पड़ेगी, मे बी दे विल क्या कहते हैं, केस भी मेरे अगेंस्ट डाल सकते हैं। तो वो उसकी वजह से मैं रेड लाइट क्रॉस नहीं करता हूँ। तो मतलब मीनिंग ये है कि एसोसिएट करना, चीजों को एसोसिएट करेंगे और उसकी वजह से हम लर्न करना सीखेंगे। Oh my God. So here we will start with an example. So जो Barron 2001 है has described classical conditioning as, उसने क्या किया इसको explain किया है दूसरे words में, a basic form of learning in which one stimulus comes to serve as a signal for the occurrence of the second stimulus. ठीक है, कि इसमें जो एक स्टिमुलस होता है या फिर कोई भी एक चीज जिसकी वजह से हमें दूसरे के बारे में पता चल जाएगा या फिर वो चीज हमें सिग्नल देगी किसी दूसरे स्टिमुलस के बारे में, वही होता है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। And during classical conditioning, organism acquire information about the relations between various stimuli, not simple associations between them. तो ये ऐसे अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट ही एक एग्जांपल से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो
जो साइंटिस्ट मैंने बताया था, इवान पेवलोव, उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया था, एक डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। और उसने क्या किया, सपोज तुम एक बार सोच के देखना कि अगर मेरे घर में एक डॉग है और मैं उसको डेली खाना देता हूँ, तो वो क्या करेगा, जब मैं उसके पास खाना लेके जाऊंगा तो वो सैलिवेशन करेगा। सैलिवेशन का मतलब होता है कि जो मुंह से उनके जो निकलता है ना, पानी निकलता है, जिसको हम लार बोलते हैं, हिंदी में लार बोलते हैं। तो क्या होगा, जब उसे भूख लगेगी या फिर जब वो खाना देखेगा तो उसके मुंह से क्या है, लार निकलेगी, सैलिवेशन होगा उसके मुंह से, जो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि पहले उसके सामने खाना रखता था, वो सैलिवेशन करता था। उसके बाद उसने क्या किया कि खाना तो उसने हटा दिया, और उसने देखा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खाने की जगह ना एक बैल को रख देता हूँ। तो उसने वहां पे एक बैल रखी, घंटी रखी। ठीक है, तो लेकिन जो डॉग था, तो बैल को देख के तो उसने सेलिब्रेशन किया नहीं, क्योंकि उसको ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये फूड के लिए है या खाने के लिए है। तो उसका कोई भी रिएक्शन में चेंज नहीं आया बैल की वजह से, वो जैसा था वैसा था, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कोई उसके मुंह से लार नहीं निकली। फिर उसने क्या किया, उसके बाद उसने खाने को और बैल को एक साथ डॉग के सामने रख दिया, खाने को भी रख दिया, बैल को भी रख दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, डॉग के सैल्वेशन हो गया, उसके मुंह से लार निकलने लगी, क्योंकि वहां पे खाना भी है और बैल भी है। ठीक है, तो ये उसके मुंह से लार निकलने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने जो फोर्थ स्टेज में क्या किया, खाने को भी रिप्लेस कर दिया। उसने खाने को हटा दिया, फिर दोबारा से उसने देखा कि मैं बैल रख के देखता हूँ। तो फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सिर्फ बैल रखने से भी जो डॉग था, उसने क्या सैलिवेशन प्रोसेस वहां पे शो किया, या फिर उसके मुंह से लार जो थी वो निकलने लगी, बिकॉज ही इज एक्साइटेड। तो अब डॉग ने क्या सीखा, डॉग को ये पता चला कि हाँ यार, अगर बैल मेरे सामने रखी हुई है ना, दैट मीन्स कि मेरे सामने अब खाना भी आएगा। ठीक है, तो जैसे हम क्या कहते हैं, तो अगर दूसरे अपने वर्ड्स में बताऊं, ये तो एक्सपेरिमेंट था जो साइंटिस्ट ने किया था। तो अगर मैं और एग्जांपल दूं, तो सपोज कि जब हमारे घर में डॉग होता है, अगर हम उसको खाना खिला रहे हैं, तो वो खाना खाने आ रहा है, उसके बाद हम कुछ दिन तक क्या करते हैं, खाना नहीं खिलाते, खाली बर्तनों की आवाज करते हैं उसके सामने। तो थोड़ी दिन तक तो वो आएगा, देखेगा, लेकिन उसे पता चलेगा कि यार खाना तो है नहीं, खाली बर्तन बर्तन की आवाज सुना के मेरे को पागल बना के बुला लेते हैं, खाना तो देते नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ दिन तक तो अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद करेगा, रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, कि हम कितनी भी बर्तन की आवाज बजाएं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर अगर मैं मान लो पहले खाने की आवाज बजाता हूँ और उसके बाद उसको बर्तन में खाना डाल के दे देता हूँ, तो उसके दिमाग में क्या आएगा, अगर मैं यही प्रोसेस अगर 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार अगर फॉलो करूंगा, सेम अगर रिपीट करूंगा, तो कुत्ते के दिमाग दिमाग में ये हो जाएगा कि हाँ यार, जब भी बर्तन की आवाज बजेगी, जब भी कोई मेरे को ऐसी आवाज आएगी, दैट मीन्स उसके कुछ टाइम बाद मुझे खाना मिलेगा। तो ये अवेयर हो जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट था, क्लासिकल कंडीशनिंग। एंड कंडीशनिंग में क्या होते हैं, हम कंडीशन रख देते हैं। ठीक है, कि भाई पहले ऐसा था, अब ऐसा हुआ, और फिर रिजल्ट हमारा दोनों चीज में सेम आया। तो सेलिब्रेशन दोनों जगह हो गया, पहले बैल दिखाने से सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था, पहले खाली बर्तन बजाने से सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन जब डॉग को ये पता चला कि खाली बर्तन बजाने के बाद हमें मुझे खाना भी मिलता है, तो उसके बाद क्या होगा, खाली बर्तन बजाने से भी उसके मुंह से क्या हो जाएगी, लार निकलने स्टार्ट हो जाएगी। एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड अंडर द क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो, एक इन्होंने एग्जाम ये फिगर भी दी हुई है। बिफोर कंडीशनिंग, पहले क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस, पहले खाना रखा हुआ है डॉग के सामने, और ये क्या कर रहा है, सैलिवेशन कर रहा है, ही इज एक्साइटेड। अब क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस, यहाँ पे बैल रख दी उसने। ठीक है, ये बैल है, ये एक बैल है, कोई घंटी है, यहाँ पे रख दी। तो डॉग ने क्या किया, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, क्योंकि खाना थोड़ी ना है यहाँ पे, तो सिर्फ बैल है, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं आया। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, फिर उसने कंडीशन यहाँ पे बना दी, बैल को भी रख दिया, खाने को भी रख दिया, तो क्या, जो डॉग था वो एक्साइटेड हो गया। आफ्टर कंडीशनिंग, ये वाला प्रोसेस जब बहुत बार रिपीट किया, तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग, जो जो डॉग था, वो इस बैल को देख के भी एक्साइटेड होने लगा, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर मुझे मिल रही है, तो इसके बाद मुझे खाना भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें मैं एक बार एक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाए ताकि। तो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो यहाँ पे 4 न्यू टर्म्स आते हैं हमारे पास, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हो जाता है, वो स्टिमुलस जो कि डायरेक्ट हमारे अंदर कोई ना कोई बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है, कि वो अनकंडीशनल स्टिमुलस, वो कोई प्रोसेस या वो कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से मेरे अंदर डायरेक्ट बिहेवियर चेंज आ जाता है, विदाउट एनी क्या कहते हैं, किसी भी एनी बैरियर की वजह से कुछ नहीं होता, वहां पे डायरेक्ट ऐसा प्रोसेस हो जाता है। इसको मैं बता देता हूँ, स्टिमुलस दैट कैन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स
अनकंडीशनली एंड नेचुरली, जो नेचुरल रिस्पॉन्स हमारे अंदर पैदा होता है ना, नेचुरल, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इसमें फिगर में क्या है, जो डॉग था वो खाने को देख के सैलिवेशन कर रहा था, उसके मुंह से लार निकल रही थी, तो दैट कम्स अंडर नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट। तो ये इसका नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो जहाँ पे नेचुरल हमें रिस्पॉन्स मिलता है, जिसकी वजह से मिलता है, ठीक है, अब रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो आएगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो होगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और जिसकी वजह से हुआ है वो हो जाएगा हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से हम चेंज आ रहा है हमारे बिहेवियर में, और जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सो हियर इट सेज a stimulus that can produce response unconditionally and naturally whenever it is presented. For example दे रहा है, cutting up an onion can make you a cry and pollen from the flower can make you a sneeze. So यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हम अगर ओनियन, अगर हम प्याज अगर हम काटते हैं तो क्या होता है, हमारे आंखों में पानी आ जाता है, तो ये बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये क्या है, दिस इज नेचुरल बिहेवियर, इसमें हमने कोई भी कंडीशन नहीं रखी, किसी भी आदमी ने, किसी भी साइंटिस्ट ने आके हमें मैनिपुलेट नहीं किया, हमें डायरेक्ट, दिस इज नेचुरल सेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे ओनियन है, मैं यहाँ इसी से समझा देता हूँ एग्जांपल से, ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो ओनियन है ये हमारा हो जाएगा अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, और जो मैं यहाँ पे रोया हूँ, यू क्राई, जो हमारे आंखों में आंसू आए हैं, ये हो जाएगा हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जो यहाँ पे दिया हुआ है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशनल स्टिमुलस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूं मैं, बेल। ठीक है, बेल यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस हो जाएगी, कि पहले जो न्यूट्रल होती है। कंडीशनल स्टिमुलस की डेफिनेशन भी वही है, those are like these are the those stimulus those are net neutral earlier। ठीक है, जो पहले न्यूट्रल थे उसके बाद उनकी वजह से हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है, तो इनको हम बोलेंगे कंडीशनल स्टिमुलस। तो यहाँ पे जो बेल है वो आ जाएगी कंडीशनल। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल डेफिनेशन बता देता हूँ। सो अ स्टिमुलस दैट वाज इनिशियली न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है, जो पहले न्यूट्रल थी जिसकी वजह से कोई भी बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा था, जो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था हमारे अंदर, वो आ जाता है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी रिस्पॉन्स। लेटर, बाद में क्या हुआ, विद रिपीटेड पेयरिंग विद यूसीएस, जब कंडीशनल स्टिमुलस को हम अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर करके बार बार वो चीज अगर हम रिपीट करेंगे, तो जो कंडीशनल स्टिमुलस है ना, ये भी एक अनकंडीशनल स्टिमुलस की तरह रिएक्ट करेगा। अगर मैं इसी को एग्जांपल से समझाऊं, तो यहाँ पे जो बेल है, पहले मैंने इसके सामने रखा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं बना, तो ये क्या हो गया, हाँ, ये हो गया हमारा कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, लेकिन जब मैंने कंडीशनल स्टिमुलस को इसके साथ, अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ जब मैंने पेयर किया, और पेयर करके जब मैंने रिपीट किया डॉग के सामने, तो फिर क्या हुआ, ये जो बेल था ये क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो ये खाने की वजह से जो उसके मुंह में लार आ रही थी, वह बेल की वजह से भी उसके मुंह में सेलिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कंडीशनल स्टिमुलस क्या होते हैं, जो पहले न्यूट्रल होते हैं, और उसके बाद जब हम उसको बार बार उसको दिखाते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, बार बार रिपीट करते हैं, तो वो भी सेम ही रिस्पॉन्स हमें देने लग जाता है। ठीक है, और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से जो हमारे अंदर रिस्पॉन्स जो चेंज होगा, उसको हम बोल देंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स we give to a conditional stimulus because of some experience is known as conditional response। अब मुझे ये बताओ कि किसी को कुछ डाउट आया है इसमें समझने में? अगर आया है तो मैं दोबारा बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। एनी डाउट गाइस? बिकॉज यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आए हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें यूज टू होना पड़ेगा, दो चार बार एक देखना पड़ेगा इसको, तभी आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ जाएगा। शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन सा लगेगा।